Welcome to this very special show. Heroes of Pahalgam. The men from Pahalgam who risked their lives to save tourists when there was a horrific terrorist attack on Tuesday last. They didn't care for their lives. They rushed there to save tourists. And after the massacre, all these people were part of a procession to condemn violence, demanding end to terrorism and justice for the victims. On my right side is Sajjad. Sajjad Ahmed Butt, you may have seen his video when he is carrying an injured tourist on his shoulder for several kilometers despite the fear, terror, firing, but he didn't care for that. Also, Rais Ahmed, who is president of Poniwala and who rushed there immediately, was the first responders. Nisar Ahmed, another Poniwala. Abdul Majid, another Poniwala who rushed there, helped them to rescue the people, and above all these people from Pahalgam, whether it is a restaurant owner, hoteliers, and all in their own way have been trying to contribute how to bring situation back to normal, and this place is free from terror. Rais, I'll come to you first. آپ بتائیں گے کیا اس وقت کا منظر؟ جی جس ٹائم یہ واقعہ ہوا ہے میں اس ٹائم آفس میں بیٹھا تھا. جو ہی میں نے میسیج سنی ہے اپنے لوکل گروپس میں کہ اوپر انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ ایکچوئل میں نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی ہے, وہاں پہ فون نہ ملنے کے کارن ہم یہاں سے ترنت چل پڑے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم یہاں کے لوکلس ہیں. ہم نے اس میں شارٹ کٹ مارا ہے جہاں سے ہم جلدی وہاں. تو پولیس سرکشا فورس سے پہلے آپ ہی لوگ پہنچے؟ جی ہاں, مطلب ایکچوئل میں جو اس کا روڈ ہے وہ تھوڑا لمبا ہے, وہ 7 to 6 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. ہم جہاں سے گئے یہاں سے 4 to 4.5 کلومیٹر ہے سر. اور جو ہی ہم یہاں سے نکل گئے تو وہاں سے آن دا وے ٹورسٹ ڈرے ہوئے آ رہے تھے, چلا کے گھوڑے والے سب کو. یہاں سے جتنے بھی میرے ساتھ بندے تھے 4 5 6 بندے, تو وہ ان کو آن دا وے پانی پلانے میں اور ریسکیو کرنے میں نیچے لے کے آئے ہیں. تو اکیلا میں اس کے ساتھ میں میرے ساتھ ایک اور بندہ, 2 بندے ہم چلے گئے بائسرن. تو جو ہی ہم بائسرن پہنچے, سب سے پہلے جب انٹرنس پہ پہنچا میں تو میں نے ایک ڈیڈ باڈی دیکھی تو میرا حال برا ہو گیا. مطلب مجھے لگا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے. مطلب اپنی زندگی کا نہ سوچے کہ وہاں پہ موجود مت ہوں گے وہ. تو آپ کو لگا زندگی کا آخری دن؟ جی ہاں, مطلب کلمہ پڑھ کے ہم اندر سے ہی گئے, کیونکہ کچھ ہی ٹائم ہوا تھا, 35 سے 40 منٹ میں پہنچے ہم. تو ہم سیدھے اندر چلے گئے. تو سب سے پہلے جب ہم اندر گئے تو ایک لیڈیز آئی. آلریڈی وہاں پہ 2 بندے موجود تھے, سجاد بھائی اور وحید, عبد الوحید. 2 بندے ہمارے سے پہلے 5 منٹ پہنچ گئے تھے وہاں. اس کے بعد میں 5 منٹ پہنچا. اندر گئے تو ایک لیڈیز آئی, چلا کے میرے پتی کو بچا لو. ہم چاروں لوگ, 2 سجاد بھائی اور میں اس کے ساتھ چلے گئے اینڈ پہ جہاں پہ اس کا پتی تھا. تو ہم نے دیکھا جس کی وہ لاش وہاں نیچے, اسی نے آپ کو, اچھا آپ اس سے مل جو بڑا وائرل, اس کے ساتھ بچہ بھی تھا, دل دہلانے والی. جی ہاں, بچہ بھی تھا. ہم نے دیکھا وہاں پہ تو ہم نے دیکھا وہ ڈیڈ آلریڈی تھا. آپ ابھی بھی, آپ کے آنسو میں ابھی بھی آپ کافی لگ رہے ہیں, ابھی بھی ڈر ہے یا دکھ ہے؟ دکھ بھی ہے اور ڈر بھی ہے. ڈر اس چیز کا ہے کہ ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ایسا منظر, ایسا کالا دن ہمارے لیے جو تھا, سیاہ دن, مطلب جو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. پہلی بار دیکھنے سے مطلب ایسا لگا کہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ آیا تھا وہاں پہ. جو ہی ہمیں پورا میدان میں نظر پڑی تو چاروں طرف لاشیں تھی. تو ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے اور اس عورت کو ہم نے دونوں نے پکڑ کے گیٹ پہ لایا. ہاں, ہم نے اس کو بولا آپ پہلے جاؤ, تو اس کو گھوڑے پر بٹھا کے جی ہاں وہ نکالا. ان کو بولا ہم نے کہ ہم اس کو ہاسپٹل پہنچائیں گے, جتنے بھی تھے سب کو ہاسپٹل. اس کے ساتھ جب ہم واپس آئے تو رائٹ سائڈ میں وہاں پہ اسٹالس ہے, وہاں پہ ہم نے زخمی 4 5 دیکھے. سب سے پہلے ہماری کوشش رہی کہ ان کو پانی پلانا, ان کو ریسکیو کرنا, ان کو نیچے لانا, زخمیوں کو لانا. جی ہاں. سو لیٹ می ٹاک ٹو سجاد. سجاد, آپ کا جو ویڈیو ہے جی شاید ہر ایک ہندوستانی دیکھا ہوگا جی, کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک زخمی کو آپ نے اٹھایا اور پھر یہاں نیچے لائے آگے, اور اس کی زندگی بھی بچ گئی. جی جیسے جب ہم بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہماری چاچی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ہم وہاں پہ تعزیت پہ گئے تھے. وہاں پہ بہت سارے لوگ تعزیت میں آئے ہیں. جیسے آفا ہم نے سنا ہے کہ بائسرن میں ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, کیونکہ ہم لوکل ہے یہاں کے, تو ہم جب سے انسیڈنٹ ہم نے سنا ہے کہ بائسرن میں ایسے واقع ہوا ہے تو ہم چل پڑے. ہمارے ساتھ وحید صاحب جو پونی ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا, وہ بولا ہمارے ساتھ چلو, وہاں پہ ہیلپ کی ضرورت ہے, ریسکیو کی ضرورت ہے. تو
हम शॉर्टकट रास्ते से गए हैं, तो जैसे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जो हमने मंजर देखा वो हम बयान नहीं कर सकते, बहुत मतलब भयानक मंजर था वहाँ पे कुछ बच्चे चला रहे, कुछ औरतें चला रहे, मदद के लिए चला रहे कि हमको यहाँ से सेफली यहाँ से हमको निकालो। और जो हमने डेड बॉडी देखा है, डेड बॉडी वहाँ पे देखे, हम भी मतलब पागलों की तरह उधर इधर घूम रहा था, हम किसको बचे, डेड बॉडी को उठाए, कई लोग जख्मी थे, कहीं मरे थे, तो हमने पहले उनको आपको नहीं लगा जब आपने उठाया उसको कंधे पे कि वहाँ आतंकी जो है आपको भी गोली मारेंगे, ऐसा कुछ लगा? नहीं, हमने अपना जान का परवाह नहीं करते, हमने परवाह नहीं किया अपनी जान का। हमने सोचा ये भी हमारी फैमिली है, ये भी हमारी भाई है, इनको बचाने का हमारा फर्ज है, हमारा हक बनता था वो जो वहाँ पे जख्मी उनको बचाने। उनको हमने पानी वानी पिलाया, बाकी जो लोग आए हैं वहाँ से घोड़े वाले, हमने उनके कंधे पे भी लोगों को बिठा के नीचे पहलगाम की तरफ रवाना किया। और बहुत सारे जो पोनी वाला वहाँ से नीचे से आ रहा है, पहले ये मार्केट की तरफ से जो बैसरन की तरफ आ रहा है, तो उनको घोड़े पे बिठा के जो बहुत सारे जख्मी थे उनको पहलगाम के हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया था। और आधे रास्ते में बाकी जो लोग आ रहे हैं जो हमारे कंधे पे थे उनको हमने दूसरों के कंधे पे बिठा के उनको पहलगाम की तरफ हमने रवाना किया। और जो बच्चे मेरे कंधे पे थे वो नहीं चल पा रहा है, वो बोलता हम नहीं चल पा रहे। आपका एक साथी जी ये सईद आदिल, वो भी मारा गए, वो बचाते वो भी मतलब उसने भी उसमें अपना जान गवा और आपने भी अपनी जान की परवाह नहीं की है सर। जी तो आप कैसे इस दिन को याद रखेंगे? क्योंकि आप ये हमारे लिए मतलब ये हमारे लिए ये तो हम ये दिन कभी जिंदगी में हम भूल ही नहीं गए। ये हमारे लिए ब्लैक डे, इसको हम मतलब हर साल ब्लैक डे मनाएंगे सर। ये चीज जो हमने ये मतलब वाक़ा देखा है, इंसिडेंट देखा, हम जिंदगी भर इसको कभी नहीं भूलेंगे सर। ये कयामत का मंजर था उस टाइम हमारे लिए, कयामत का मंजर था। एंड दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस डे as a black day every year. That's what these heroes of Pahalgam are saying. मजीद साहब, तो क्या देखा आपने, कैसे याद कर? 2025-22 अप्रैल वाक़ा हुआ, समझो 3 बजे तक खुशी का माहौल था। अचानक 3 बजे के करीब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक मैसेज डाली ग्रुप में कि बाइसरन में एक हादसा पेश आया, जो भी घोड़ा वाला जहाँ पर है, जो भी कोई मजदूर या ड्राइवर जहाँ पर भी है वो वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने चलने की कोशिश की। ये व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने अपना बनाया? ये जो हमारे घोड़े वालों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में मैसेज आया और हम एकदम भाग निकले। करीबन हम 2-2.5 किलोमीटर के करीब भागे। जो लोग ऊपर से आ रहे थे हमने उनको रेस्क्यू किया, किसी को घोड़े पर बिठाया, किसी को अपने कंधे पर लिया। तकरीबन एक सजाद तो वायरल हुआ, इसमें सैकड़ों सजाद। नहीं आई नो, एक ही आदमी इतने लोगों को नहीं रेस्क्यू कर सकता। सजाद का तो वीडियो आया, लेकिन तो आपका नहीं। सैकड़ों सजाद मौजूद है जिन्होंने आदिल की तरह अपनी जान पर खेल कर अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। तो क्या है आपकी मैसेज उन कातिलों के लिए जिन्होंने न सिर्फ बेगुनाहों का कत्ल किया बल्कि यहाँ इस पहलगाम पे भी एक काला धब्बा लगा है? मेरी तरफ से मैसेज यही है, हम किन अल्फाजों से उनको याद करें। ये वहशियाना, ये जालिमाना, कातिलाना, दरिंदाना सिफत इंसान थे जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया। और हमारे लिए ये एक यौम सियाह की तरह ज़िंदगी में याद रहेगा ये दिन। So April 22nd will be a black day. They would be observing that everybody is saying. आप बताइए फिर जी, आप भी पोनी वाला हैं? जी मैं पोनी वाला निसार अहमद भट्ट हूँ। निसार जी, हाँ निसार जी जैसे ही हमको पता चला ये व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा पोनी स्टैंड का है, जैसे हमको ये मैसेज आया यहाँ पे इंसेट हुआ है, फिर हम आधे रास्ते तक लाशों को मार्केट तक वापस लाशों को जख्मी को वापस ले आए पहलगाम हॉस्पिटल तक। ये बहुत दुख की बात है सर। बोल नहीं पाते? नहीं बोल पाते। मतलब अभी भी जो मंजर हमारे आंखों में है पूरा मातम है, पूरा मतलब जो भी है बात अभी कर नहीं सकते पूरी तरीके से। मैंने पहले ही बोला कि हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा। और जिन लोगों ने इस काम का अंजाम दिया है, मतलब उनको चाहिए था कि सबसे पहले हम हमारे घरों में आके हमको मार डालें, क्योंकि हमारा इनके साथ रिश्ता जो था खुशी से हम यहाँ पे चलते थे। सारे लोग टूरिस्ट आते थे, मतलब कई सारे टूरिस्ट अब मेरे लाइफ में आज तक बहुत मेरे घर भी आ चुके हैं। मेरे बच्चों के घर भी आते हैं? जी हाँ, इतना मतलब क्लोजली हो जाते हैं हम टूरिस्ट के साथ, अट्रैक्ट हमारे। वो चाहते हैं आप हमें घर ले जाओ, हम आपके घर देखेंगे, आपके फैमिलीज देखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट जो है जो मेरे घर आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एक ना पुल जो ये धब्बा लगा है उन लोग कायरानों ने, हम
टूरिस्ट के बीच में जो एक पुल उन्होंने लगाया, तो इस पे अभी हम बयान नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर हमारी जान भी जाएंगे ना आगे, मतलब हम चाहते हैं, अपने मुल्क के लोगों पे इतना भरोसा है, आप लोग आओ, आप लोग यहाँ पे कश्मीर आ जाओ, आप फिर से वो देखो, वो हॉस्पिटलिटी, जैसा भी मतलब ऊपर वाला ना करे ऐसा हादसा फिर कभी हो, हम आगे आगे अपना सीना तान के है आप लोगों के कुछ इंतजार। घोड़े वालों ने मुझे उस दिन बताया, अगले दिन जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला, कि हम सुरक्षा फोर्सेस की, आर्मी या पुलिस की मदद भी करेंगे अगर ऑपरेशन में हमारी जरूरत हो। जी हाँ, एकदम। हाँ? हमने ये नहीं सोचा, मतलब हम यहाँ से चले गए दौड़ के, हम वहाँ पे एक्चुअल में मतलब कोई सिक्योरिटी भी नहीं था उस टाइम जब हम गए। हमने ये नहीं सोचा कि हमने ये सोचा मारेंगे तो हमको भी मारे, मतलब आपने अपनी ऐसा जिंदगी पर हमने भी यही सोचा कि हम वहाँ पे जो वो भी हमारे परिवार के हिस्से थे, उनको बचाने, जो हमने उनको बचाया वो हमको हक बनता था। तो हमको हम फैमिलीज मानते थे और आगे भी मानते रहेंगे और मानेंगे भी। These are not just words, they have shown it by risking their lives and trying to save the injured. Let me talk to more people. They are from the Pahalgam. They are the ones who took out first protests and actually showed to the world that when it comes terror, people don't approve it. They just reject it and say this should end. And tourists, our friends and our guests and those who are killed it are the enemies of Kashmir. आप बताएंगे क्या आपने उस दिन वो जुलूस भी निकाला पहले दिन? लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि इकबाल ने क्या खूब कहा कि देख कैसी क़यामत सी बर्पा हुई है आशियानों पे इकबाल, जो लहू से तामीर हुए थे पानी से बह गए, बहुत बुरा हुआ। असल बात दुख एक चीज़ का है, देखिए रोज़गार अल्लाह मतलब रिज़्क देने वाला अल्लाह है, मैं उस चीज़ पे यकीन रखता हूँ। आप कहते हैं आज रोज़गार की बात नहीं बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, हिंदुस्तान में एक ऐसी इमेज हमारी थी, मैं जामिया मिलिया, JNU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहाँ पे मैं खड़ा नहीं। मैं एज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, तो काफ़ी मौका मिला मुझे। हिंदुस्तान में बायोडाइवर्सिटी है, इसमें दो मतलब राय नहीं है, डाइवर्सिटी है बिल्कुल, पूरे हर समाज के लोग रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वही डाइवर्सिटी जो आप कहेंगे वो हमारे पहलगाम में भी है। ये पहलगाम जो है सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, ये शिवा की, लॉर्ड शिवा की भी ज़मीन है, मतलब और यहाँ क्योंकि इट इज़ अ बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा आल्सो, दे आर नॉट ओनली होस्टिंग टूरिस्ट, दे आर आल्सो होस्टिंग यात्रीज, एंड अमरनाथ यात्रा इज जस्ट लेस देन 2 months अवे। एंड आप भी यहाँ कुछ छोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हाँ। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र तो सिंह है। क्या आप कह सकते हैं नरेंद्र जी, जब आप कोई खौफ तो नहीं है? नहीं यहाँ पे ऐसा कोई खौफ नहीं है, लेकिन ये खौफ से भी बढ़ के है हाँ। जो हमारे साथ हुआ कि हम ऐसे लोग यहाँ पे नहीं हैं। हम यहाँ पे गॉड फेयरिंग लोग हैं, ऊपर वाले से डरने वाले लोग हैं, और यहाँ पे यात्रियों को हम ऐसे सर्व करते हैं जैसे अपने भगवान को करते हैं। तो हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, ना कोई करेगा यहाँ पे पहलगाम में। हम यहाँ पे किसी अलग रिलीजन के हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हम एक इंसान है। ये कमाना या बिजनेस आज भी मैंने देखा ब्लैक फ्लैग्स लगी हैं कई दुकानों पे। जी। So many I could see the black flags also. So let me come back to the heroes of Pahalgam, those who risked their lives. आप आ जाइए रईस जी, यहाँ आ जाइए आपसे। तो आप ये बताएंगे कि आपकी मैसेज क्या होगी? आप क्योंकि जब जिस तरह का ये कांड हुआ, दर्दनाक वाक़ा हुआ, पूरा मुल्क इसके खिलाफ खड़ा है, पूरा कश्मीर भी हमने देखा पहली बार किसी आतंकी हमले के खिलाफ बंद हुआ। देखिए मेरी मैसेज, आपको लगा कि जो आपने किया, वहाँ रश किया, इंजर्ड को बचाया, सही कदम ही नहीं था बल्कि ज़रूरत भी थी, और हर एक को आपने प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। मेरी मैसेज यही रहेगी अपने मुल्क के लोगों से, जैसा हमने अपने मतलब अपनी जान का परवाह ना किए हुए वहाँ पर पहुँचे इंसिडेंट पे, वहाँ पे ज़ख्मी इसको लाया हमने, मतलब डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू किया, वहाँ पे सब कुछ हमने रेस्क्यू किया, और हमारे साथ साथ जो यहाँ की मतलब पुलिस टीम वो भी पहुँची थी हमारे बाद 10 मिनट, और CRPF का टीम पहुँची थी। उनके साथ साथ हमने भी पूरी कोशिश की कि अपना कश्मीरियत दिखाना, अपने इंसानियत दिखाना, क्योंकि एक्चुअल में जो वाक़ा ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मतलब पूरे इंसानियत का कातिल है। इसलिए हम मैसेज देता है पूरे हिंदुस्तान के, मतलब अपने मुल्क के लोगों से, आप लोगों की जो बुकिंग है, आप लोग आइए, पहलगाम आइए। कई लोग आए। आई मस्ट टेल यू, yesterday 1300 people, tourists have come to Pahalgam. They arrived here in Pahalgam, and today I also saw many coming. They say terrorists cannot scare them, they will come because people here are so
good, they are so caring, and that's why they will come. It is actually the faith in the people of Kashmir. The tourists are coming. I saw many tourists coming, people from Gujarat, people from Maharashtra today coming, while we saw tourists from both the states, they were killed. So آپ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، میری یہی ریکویسٹ ہے، یہی میسیج ہے کہ ہم لوگ نہ ڈرے ہوئے وہاں پر پہنچے. ہمارا جو ایک اہلکار تھا، ہمارا جو ساتھی تھا، انہوں نے اپنا جان گوایا. سعید عادل نے جان گوایا ہے. اگر وہاں پہ باؤنڈریز لگی ہوئی نہیں ہوتی، مطلب جو یہاں سے گھوڑا والا جاتا ہے وہ باہر رہتا ہے گھوڑے کے پاس، ٹورسٹ اندر جاتے ہیں گھومنے کے لیے. اگر باؤنڈریز نہیں لگی ہوئی ہوتی، پتہ نہیں کتنے سارے عادل اندر جاتے. یہ تو مطلب اس میں ہم بیان نہیں کر سکیں گے. مطلب میرے جیسے، سجاد جیسے بہت سارے. So actually he is trying to say pony walas cannot go, pony operators cannot go inside the meadow which is completely fenced. They cannot go, otherwise so many people would have, these pony walas could have actually died. They rushed after that. لیکن آپ کا جو امیج ہے شاید ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ کس طرح آپ کا ویڈیو آیا اور کا نہیں آیا. تو آپ کی کیا میسیج ہے ہر ایک کے لیے کہ ہمیشہ ملک کے ساتھ؟ اور ہمارے میسیج یہی رہے گی، جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہے، جو بھی ٹورسٹ کشمیر آ رہے ہیں، ان کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، آپ ڈرے مت. آپ بے خوف کشمیر گھومنے آ جائے، ہم آپ کے ساتھ شانہ باشان کھڑا ہے سر. آپ کھڑے ہیں. اور I have heard it from many people that this should be the last terror attack in Kashmir. In fact, yesterday when a resolution was passed in Jammu and Kashmir Assembly that was representing these emotions, but I saw their voice choking when they were reminding that horrific incident. There's a couplet, کوئی جو مجھ سے پوچھے تو کیا شرح حالات لکھے، دل ٹھہرے تو درد بتائیں، درد تھمے تو بات کریں. They're still breathing in that pain and the horror. They are trying to come to terms with the tragedy, and then perhaps it may take more time to actually to narrate the story. They say April 22nd will be observed as a black day here in Pahalgam. I have seen many black flags in Pahalgam even today, and people, even these hoteliers are saying whatever in first days they say they will provide free accommodation. Taxi operators say they will provide free ride. So everybody came together. This was most unprecedented, but credit goes to these heroes. They are the heroes of Pahalgam who risked their lives and sent a message to terrorists. Not in my name. You are murderers.